Good morning, students. Today we are going to explain some very important facts of our first chapter, that is Constitution. This is very first chapter of your political science book. The name of the book is Constitution at Work. The Indian Constitution at Work, and the first chapter is Constitution Why and How. As we saw the chapter's title Constitution Why and How means Constitution क्यों और किस लिए, इसकी हमें ज़रूरत क्या है, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई. सो सी फर्स्ट मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted of or governed. The constitution is a compact document that comprises of a number of articles about the state. So this is the meaning of constitution. Constitution एक बॉडी है जिसमें एक ऐसी बॉडी है जिसमें फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स है, जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है जो बनाया गया है और जिसे गवर्न किया जाता है वो प्रिंसिपल्स है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में. और कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. किसके बारे में? स्टेट के बारे में. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच आर स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नड. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट. इन शॉर्ट वी से कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच देयर आर मेनी आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट. Constituent Assembly. What is Constituent Assembly? The points that we are discussing, all points are very important for our Constituent Assembly. The Constitution of India was framed by a Constituent Assembly which was established in 1946 under the Cabinet Mission Plan of 1946. तो Constituent Assembly एक ग्रुप है जिसने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. ये असेंबली जो 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी कैबिनेट मिशन के अंडर में. कैबिनेट मिशन के अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फॉर्म हुई थी. सब इलेक्शन भी पहली बार हुए थे हमारे उसमें हमारे इंडिया में, और जो मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुए थे उन्हीं से मिलकर के ये बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. These are the functions of Constitution: to provide a set of basic rules that allow for minimal degree of coordination and assurance amongst members of a society, to specify who has the power to make decisions in the society, to set limitations on the government, to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a society, to express the fundamental identity of the people. There are 4 functions of Constitution. Okay, these 4 functions are before you. In the first, there are the rules. Those are followed by the public. In the second, there are the rules for the government so that they limit their power. The third or fourth, there are the rules for the government that they have to fulfill. They have to make the rules such as fulfill the aspirations of the public. It means to say the rules that will be made, those will be for the public, to express the fundamental identity of the people, and all people will have their fundamental identity that we say ID. Why do we need a constitution? The most important thing, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ही क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स जो है उन्हें लिमिट करता है, उन्हें डिफाइन करता है, मतलब उन्हें सीमित कर देता है. गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन 3 ऑर्गन्स की अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है. यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन है कि किस ऑर्गन को कितनी पावर दी गई है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के. थर्ड,
कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड देयर रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन है? वो राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए हैं और उनका रिलेशंस क्या है, कैसा है गवर्नमेंट के साथ में। सी वी ऑल आर बाइंड विद द गवर्नमेंट, देयर इज़ अ बाउंडेशन दैट वी कैन नेवर एवर ब्रेक। मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन फीचर्स क्या है? The sets that we are explaining, these all are the answers of each heading's question, of each question. Each line is the answer of a question. It is a blend of rigidity and flexibility. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। सेकेंड, इट इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन अ स्पिरिट। फॉर्म में ये फेडरल है बट फॉर्म में ये यूनाइट है। इट हैज़ फेडरल एज वेल एज unitary features. The Constitution of India is supreme, which is respected and accepted by all the institutions and citizens of India. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है, जिसका सब रेस्पेक्ट करते हैं, जिसको सब ने एक्सेप्ट किया है बाय ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब कि एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर क्वेश्चन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है? ओके, वी विल डिस्कस दिस पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे ऑल्सो.